All right, hi everyone. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. Okay. कैसे हो आप आज? हाँ, so एक one important thing before I want to start our discussion today, I want everyone to fill this form. There is this mandatory self-assessment that you need to do, and not right now. क्योंकि मैं ग्रुप पे डाल रहा हूँ आपके, तो सेल्फ असेसमेंट मतलब? वो आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको समझ में आएगा. I've shared something on the WhatsApp group and I'm sharing something over here on the Zoom chat as well. Now, once you open it, it will take you to a Google form which is helpful in creating a status of how your atomic structure chapter is. What is it that you have done? What is it that you still need to do? ठीक है, अभी मत भरने बैठ जाना. ठीक है, आराम से तसल्ली से भरना whenever you get the time, and please fill it with complete honesty because it will help you understand that where is it that you stand in the chapter and what is it that needs to be completed yet. ठीक है, this is something which we are going to do for upcoming other chapters also, like मूल concept, but I will do it post the chapter is done. ठीक है, so एक ये important चीज मैं आपके साथ share करना चाह रहा था. Okay, having said this, अब आपके सामने सर एक और बार रिपीट करोगे वो क्या करना है फॉर्म पे? एक फॉर्म मैंने आपको भेजा है व्हाट्सएप पर. It is a self-assessment form which you'll have to fill. It is for atomic structure chapter, so as to understand आपका कैसा उसमें current level of preparedness है. ठीक है, what is it that you have done, what is it that you still need to do, ये सब आपको उसमें फॉर्म पढ़ के समझ में आएगा. ठीक है, मेक श्योर दैट यू डू इट विद लाइक एक बार पहले अच्छे से सारे क्वेश्चन पढ़ लेना. डोंट बी इन अ रश टू जस्ट गेट डन विद इट. अच्छे से सब पढ़ के फिर प्रॉपरली इंट्रोस्पेक्ट करके कि आपने क्या कर लिया है क्या नहीं करा है, उसके हिसाब से वो फॉर्म फिल करना. एंड मेक श्योर दैट यू राइट योर अटेंडेंस आईडी एंड योर फुल नेम प्रॉपरली. ठीक है, दिस क्लियर विद एवरीवन नाउ? सर Yes, sir. Yes. ठीक है, इट विल नॉट टेक मच टाइम, बट प्लीज डू दिस एज एन एक्सरसाइज. Sir, after class we will give, no? हाँ हाँ, ठीक है. Now, coming back to our current topic at hand, that is concentration terms. अब लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को मोलारिटी क्या होता है, मोलालिटी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है वो करा दिया था. उस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराए थे एंड आई हैड गिवन यू सम होमवर्क टू प्रैक्टिस आल्सो. ठीक है, वो होमवर्क हम लोग कल के अपने डाउट डिस्कशन सेशन में डिस्कस करते हैं. सर आप आज होमवर्क दोगे? ठीक है, हाँ मतलब आज एज सच मैं होमवर्क आप लोगों को आज दूंगा तो सही होमवर्क, बट मैं आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप कल के कल उसको करके लेके आ जाओ. ठीक है, सर और हमारा जो संडे को टेस्ट है उसमें फुल चैप्टर मूल कॉन्सेप्ट होगा या यस जितना आपने यस, किया है? ओके फुल 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 वो फुल हो ही जाएगा. मतलब लाइक वी आर जस्ट वन लेक्चर अवे फ्रॉम कंप्लीटिंग द चैप्टर. सर, तो इंस्टेड ऑफ कल आप क्लास ले सकते हो और तो हमें ज़्यादा टाइम मिलेगा पढ़ने एग्जाम के पहले. Well, I need to actually have that doubt discussion session on concentration terms because otherwise फिर उसमें doubt इकट्ठे हो जाएंगे and you will not be able to do it as effectively as possible. आप ओके सर. जो पुराना वाला पोर्शन है उसके तो क्वेश्चंस आप कर ही रहे हो ना इन पैरेलल. हाँ सर, हाँ सर. Yes, sir. प्रैक्टिस चल रहा है. Yes, sir. चलो ठीक है. सो अब आपने जो होमवर्क को करा होगा,
ठीक है, ट्राई करा होगा जो मैंने दिया था उसमें you might have come across certain questions जहाँ पर interconversion between concentration terms would have been asked. Yes, sir. Like you would have been given molarity and you would have been asked to calculate what the molality would be और molality mole fraction के बीच में like एक concentration term दिया होगा और दूसरा concentration term निकालने के लिए बोला होगा. अब ये जो सब टॉपिक है इसके लिए one of the incorrect ways in which some students might try to do is they start ratifying the formulas. So when you will read your booklet or when you will refer to some reference book, तो उनमें ये एक सेक्शन रहता है जिसमें यू आर गिवन सर्टेन फॉर्मूलाज कि आप इनको ध्यान में रख लो और आपका काम चल जाएगा. ठीक है, वो आपको बिल्कुल नहीं करना है. लाइक यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनी ऑफ दोज फॉर्मूलाज, यू हैव टू डेवलप एन अप्रोच. ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको क्विकली एक बार हाईलाइट कर देता हूँ ताकि ऑल ऑफ अस आर ऑन द सेम पेज. ये आपका जो बुकलेट है ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में उसके पहले का पोर्शन है. हाँ, इसमें अब जैसे आप नोटिस करोगे मोल कंसेप्ट में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जहाँ पर आता है स्टोइशियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट, यूवीसी, ये सब हो गया. ठीक है, हाँ ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वाला आएगा तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बताएंगे, मोलारिटी क्या होता है, मोलालिटी क्या होता है, एंड देन देयर दिस टर्म कम्स इन. कहाँ गया, देयर इज दिस, हाँ जैसे ये है. ठीक है, ये वाला सेक्शन आप नोटिस करोगे तो उसमें क्या है लाइक मोलारिटी मोलालिटी को रिलेट करते हुए कोई फॉर्मूलाज वगैरह बना दिए हैं. तो इस तरीके का काम नहीं करना है. यू डोंट नीड टू रेक्टिफाई एनी रिलेशनशिप और एनी फॉर्मूला दैट आर देयर बिटवीन दीज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. हम लोग जब भी करेंगे डिस्कशन, ठीक है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के साथ में ही करेंगे. एक अप्रोच डेवलप करेंगे हाउ टू डू दीज इंटरकन्वर्जन्स. कैसा रहेगा वो अप्रोच, वो अप्रोच को आप ध्यान से समझना सुनना. सो आज का लेक्चर इज गोइंग टू बी प्रीटी एनालिटिकल इन नेचर इन द सेंस यू विल हैव टू कनेक्ट अ लॉट ऑफ डॉट्स. तो मेक श्योर मुंह धो के आ जाओ अगर मुंह नहीं धोया हुआ है तो. ठीक है, अटेंशन चाहिए रहेगी तुम्हारी. डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन इट्स 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन. तो यहाँ पर क्या दे दिया आपको, मोलालिटी दे दिया है और मोल फ्रैक्शन पूछा है. दैट इज द नेचर ऑफ द क्वेश्चन ओवर हियर. अब देयर इज नो फॉर्मूला. ठीक है, ऑल्दो देयर एग्जिस्ट्स अ फॉर्मूला बट आई डोंट वांट टू रेक्टिफाई दैट फॉर्मूला एट ऑल. यू हैव टू डेवलप एन अप्रोच. कैसा है वो अप्रोच? You start with the denominator of the given concentration term. What is the given concentration term over here? Molality. Molality. तो आपको molality का फॉर्मूला याद है, it is moles of solute upon mass of solvent in kg, right? So that becomes your starting point, the denominator. Let the mass of the solvent be 1 kg. Okay, that is what your starting step would be. You can very well choose a variable over here. If you don't want it to be 1 kg, you can very well say m kg. वो भी चलेगा, आपका आंसर तब भी आ जाएगा. ठीक है, 1 kg मैंने इसलिए लिया है क्योंकि क्वेश्चन में लाइक और कोई ऐसा हार्ड डेटा नहीं दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्वेंट को लेकर. तो हम लोग अगर 1 kg सॉल्वेंट भी ले लेंगे तो भी वी शुड अराइव एट द करेक्ट आंसर. नाउ वंस यू स्टार्ट विद दैट, अब आप फोकस करो दैट जो रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म है. व्हाट इज द रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म? Mole fraction. Mole fraction. Mole fraction. What is the formula of mole fraction?
Moles of the Moles of solute the upon substance, total moles. moles of the component by the sum of moles of the Total moles. yes sir. moles of urea upon moles of urea plus moles of H2, right? तो इसमें what helps is you start thinking about the numerator and the denominator अलग अलग से, ठीक है? That kind of gives you a little bit of ease or a clarity कि हम लोग कैसे अब आगे अप्रोच करें. तो आपका न्यूमरेटर जो है मोल्स ऑफ यूरिया या मोल्स ऑफ सल्यूट, आप उसके बारे में सोचना शुरू करो, राइट? Is there any piece of information in the question that can help you come up with the numerator? Like you have 1 assumed, mole is right? You 1 molar. have assumed mass of solvent to be 1 kg and you have been given that 1 molar aqueous solution है. तो यहाँ से आपको moles of solute आ रहा है, Yes. 1. Yes, sir. Yes, sir. right? 1 mole आ जा रहा है, right? So you look at the denominator, तो आपको ये समझ में आएगा that एक second, moles of urea upon mass of solvent, तो ये मोलालिटी आपको दिया हुआ है, तो इससे आपका मोल्स ऑफ यूरिया आ गया, राइट? 1. तो ये आपका न्यूमरेटर सॉर्ट हो गया. Yes. Yes, sir. अब आपका जो डिनोमिनेटर था उसमें क्या है, यू हैव मोल्स ऑफ यूरिया एंड मोल्स ऑफ H2O. अब मोल्स ऑफ H2O कैसे निकाल पाएंगे? इज देयर समथिंग अगेन दैट वी हैव बीन गिवन इन द क्वेश्चन or that we have assumed can help us get the moles of 1000 grams. 1000 Yes, gram sir. upon 18. काफ़ी सिंपल है, 1000 ग्राम्स है तो 1000 by 18 मोल्स आ गए, बस हो गया सॉर्ट, सब्स्टिट्यूट करा और आंसर आ गया, ठीक है? इवन इफ यू हैड टेकन अ वेरिएबल ओवर हेयर तो भी आपका आंसर कैसे आता आप नोटिस करना, ठीक है? इवन इफ यू हैव टेकन दैट लेट द मास ऑफ सॉल्वेंट बी m kg, राइट? तो आप यहाँ पर नोटिस करोगे मोल्स कितने आ जाएंगे यूरिया के, M. राइट? मोलालिटी 1 दी हुई है, मास ऑफ सॉल्वेंट 1 m kg है, तो मोल्स ऑफ यूरिया m आ गए, Yes. राइट? एंड सिमिलरली यहाँ पर मास ऑफ H2O हमने m kg अज्यूम किया है, मतलब 1000 m ग्राम्स रहेगा, तो मोल्स 1000 m by 18 हो जाएंगे. Yes, sir. अब इनको सब्स्टिट्यूट कर दो ओवर हेयर, यहाँ पर m अपॉन m प्लस 1000 m by 18, तो ये m कट गया ना. कैन यू सी द m कैंसिलिंग आउट? Yes, sir. You get the same answer, that is 18 by 108 or 9 by 509, ठीक है? So approach is what is key, approach what is important as a focus when you are doing this interconversion between concentration terms, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, and this is a reality based upon my experience. When I teach this topic, interconversion between concentration terms, some section of students are going to be able to pick this fast. They might be even able to do the questions right now, right here in the class and give the correct answers. ठीक है, उनको वो अप्रोच क्लिक कर जाता है फटाफट, they are able to connect the dots. Significant chunk of the class is not going to be able to get the answers in the first attempt, ठीक है? बिकॉज एक नया तरीका, एक नया अप्रोच आपके साथ में डिस्कस करूँगा, तो उसको अब्जॉर्ब करने में, उसको ऐसा लाइक अपना अप्रोच बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. एटलीस्ट 5 to 10 such interconversion questions would be required for students to get comfortable. तो जैसे मैंने पहला क्वेश्चन कराया, फिर मैं दूसरा कराऊंगा, तीसरा कराऊंगा, और हर बार थोड़ा थोड़ा सा ट्विक करूंगा, चीज़ें चेंज करूंगा, तो कंफर्ट बढ़ेगा नहीं, कंफर्ट कम होगा. आपको लगेगा कि अरे शायद समझ में नहीं आया, बट दैट्स ओके बिकॉज द फर्स्ट आइटरेशन इज सपोज टू बी दैट वे. Only when you take that effort and time that you are going to resolve these questions after the class, you will get some confidence that अच्छा इस तरीके से अप्रोच करना था, इस तरीके से वर्क करना था, ठीक है?
तो ये इस तरीके का टॉपिक है, इसमें ये कनेक्टिंग जो डॉट्स का एस्पेक्ट रहता है, दैट इज द स्किल सेट विच इज नॉट something which I find readily available in a lot of students. Most of the students develop it over time. And अभी आप क्या जर्नी के स्टार्ट में हो ना, that is the actual analytical skill set that we are working towards. ठीक है, so make sure that you have that patience and ask me any silly doubt that you come across. क्योंकि यहाँ पर sometimes students tend to make their own assumptions about certain things. And that is something which is a natural tendency. If you are doing that, it's okay. ठीक है, मुझसे कोई भी सिली डाउट हो तो भी पूछना कि सर ऐसे करेंगे तो क्या होगा, वैसे करेंगे तो क्या होगा, ऐसे क्यों सोचा आपने, वैसे क्यों सोचा आपने. जितना डिस्कशन करोगे, जितना आपने डाउट्स क्लियर करोगे, उतना बेटर रहेगा, स्पेशली इन दिस सब टॉपिक. ठीक है, ये पहला क्वेश्चन समझ में आया, सबने लिखा, यस सर. अप्रोच क्लियर है? कितना बाकी है? हाँ, तो लिखो हाँ फटाफट. सर. ठीक है, और जिन्होंने लिख लिया है वो अगला क्वेश्चन चालू कर दो. अगला क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है आपके. ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको लाइक जूम कर लेता हूँ. और डिटरमाइन, आपने इतना तो कर ही लिया होगा ना, क्वेश्चन तो लिख ही लिया होगा, हाँ सर. है ना. तो ये रहा. ठीक है, जिन्होंने लिख लिया है वो अगला क्वेश्चन भी ट्राई करो. सर आंसर भेजो. हाँ हाँ बिल्कुल भेजो ना. लिख लिया पहला वाला तो सबने, आई थिंक. कैन आई जूम इन ऑन द क्वेश्चन नाउ? यस सर. ठीक है. हाँ, तो कैसे अब स्टार्ट करेंगे हम लोग? कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज बीइंग आस्क्ड? Yes, sir. Molarity and morality is Yes, sir. pronounced. अब जो गिवन कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, दैट इज आवर मोलारिटी, हम उसके डिनोमिनेटर से स्टार्ट करेंगे. व्हाट इज द डिनोमिनेटर ऑफ मोलारिटी? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. सो यू कैन start by saying that let the volume of solution be 1 liters. ठीक है, you could have taken a variable also, that would have also worked, but ठीक है, यहाँ पे 1 liter is something which will make life a little easier. And now what is being asked? Molality. Molality means moles of solute upon mass of solvent in kg. ठीक है, तो जो given asked concentration term है, उसके numerator और denominator को हम अलग अलग handle करते हैं. What is the numerator? Moles of solute. Now in order to get the moles of solute, do you think we have some thing in front of us, like is this something which is sufficient to help us with the Yes, sir. Yes, sir. Sir. Get mass. right? आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है,
और मोलारिटी है, तो क्या आप उससे मोल्स ऑफ सोल्यूट बता दोगे सीधे सीधे? हाँ सर। Yes, sir. काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। तो ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है न्यूमरेटर का, मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो वो मोलारिटी से आ गया। मोलारिटी इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम 1 लिया, मोलारिटी 1 गिवन है, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 आ गए। यस सर। ओके, Yes, sir. गुड। नाउ लेट्स थिंक अबाउट द डिनोमिनेटर. व्हाट डज द डिनोमिनेटर से? Moles Weight of the solution. Mass of solvent. Solvent. Mass of solvent. ठीक है, some people here would have incorrectly assumed mass of solution. Solution नहीं है, solvent है। ठीक है, so is there Yes. something in the given data and the assumed data that I can do to come up with the mass of solvent? Yes. Yes, sir. So Yes, sir. density or Density. density. Density का क्या यूज करूँ मैं? How should I use density? Some Sir, Volume 1 of liter लेके solution. sir. Volume one. Into volume. Density Volume of solution. और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा डिनोमिनेटर आ जाएगा। हाँ, नहीं सर। नहीं सर, Yes, सर sir. उसमें नहीं, sir. माइनस करना Mass of पड़ेगा सर, solution मास ऑफ Minus mass of solution glucose. मिलेगा। करेक्ट। तो यहाँ पर आई होप वी अंडरस्टैंड ये जो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। हमको सॉल्वेंट का मास चाहिए, दिया जो है हमको वो सोल्यूशन का डेंसिटी और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, तो उससे एक्चुअली मास ऑफ सोल्यूशन आएगा ना, दैट इज नॉट द डिनोमिनेटर, वो 1200 ग्राम आएगा। नाउ इज देयर स्टिल अ वे इन विच आई कैन डिटरमाइन मास ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम मास ऑफ सोल्यूशन? Yes, sir. Sir, Yes. we know the moles of the क्या कहते हैं? Moles of moles glucose. of the glucose. Moles So of then we can solute subtract. मिलेगा। 80 That. को सब्ट्रैक्ट करो। सब राइट, मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने निकाला ना, तो उससे मास ऑफ सोल्यूट आ जाएगा। राइट, अब ये कैसे स्ट्राइक करता है? हाउ डज दिस स्ट्राइक? Many students are able to like conclude this or deduce this, but some students were not able to do. तो उसका मैंने एक सिंपल जो ऑब्जर्वेशन देखा है कि जो स्टूडेंट्स हवा में नहीं करते हैं, जो स्टूडेंट्स जितना पेन चलाते हैं लिखते हैं, ठीक है, मान लो इतना उनकी आंखों के सामने लिखा हुआ है यहाँ तक का, ठीक है, एंड दे आर लाइक मास ऑफ सोल्यूशन तक आ गए हैं लेकिन चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, एंड दे आर लाइक कि मोलालिटी 1 मोलर डेंसिटी और मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे ऐसे वो वर्ड्स बीच में मम्बल करते जाएंगे और उनको फिर स्ट्राइक होता है। ठीक है, इट कम्स मोर ऑफ अ एबिलिटी एज कनेक्टिंग द डॉट्स। दे वुड कम अप कि अरे अच्छा मास ऑफ सोल्यूशन तो मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट लिखा जाता है ना, तो मास ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट हो जाएगा, और मास ऑफ सोल्यूट के लिए दे देन सी कि अच्छा हाँ मोल्स ऑफ सोल्यूट दिए हुए हैं और ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट तो पता ही है, उससे मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। ठीक है, कई स्टूडेंट्स को जल्दी स्ट्राइक कर गया, कई स्टूडेंट्स को थोड़ा सा देर से स्ट्राइक करा, कई स्टूडेंट्स को नहीं स्ट्राइक करा। ठीक है, इट इज ओके टू अंडरस्टैंड वेयर यू आर राइट नाउ एंड देन वर्क टुवर्ड्स इट। ठीक है, सो यहाँ से आपका मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। अब इतना सब कुछ होने के बाद में भी देयर आर सम स्टूडेंट्स विल मेक अ केयरलेस एरर, they will put the answer as 1/1020 whereas the answer is 1/1.02। क्यों? क्योंकि यूनिट्स का भी ध्यान रखना होता है। That is what the correct answer is। Sir, answer 0.98. ठीक है, हाँ, तो मुझे तो किसी का भी सही आंसर नहीं आया था, नहीं एक का आया था, दिव्यांश का आया था बस, बाकी सब ने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। आई होप यू Sir, आर मेरे को अंडरस्टैंड व्हाट मिस्टेक यू मेड। यस सर। ठीक है, लर्न करना है उन्हीं मिस्टेक्स से। समझ में आया जोवन? यस सर। जोवन बोलूं कि जोवान बोलूं? सर जोवान। जोवान, बहुत स्टाइल है तुम्हारे नाम में, मतलब ऐसे क्या इंग्लिश नाम है क्या तुम्हारा? यस सर। अच्छा, सर और एक क्वेश्चन दे सकते हो सिमिलर बेसिस पे? सर एक मिनट रुक सकते हो? एक थोड़ा- तो बहुत सारे करने पड़ेंगे, एक दो से तो काम ही नहीं चलेगा। आपने बोला ना ट्वीट करके दोगे सर, तो इसलिए। हाँ हाँ करेंगे, अभी अगला क्वेश्चन भी देंगे। जिसको लिखना है फटाफट लिखो, फिर अपन देखेंगे। अपनी केयरलेस मिस्टेक्स भी आइडेंटिफाई करते जाना, जहाँ जहाँ पर गड़बड़ कर रहे हो, हाईलाइट दोज केयरलेस मिस्टेक्स। सर मैं आपको बोल रहा था तब मुझे याद आया कि सोल्यूशन का वो निकालना।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर मोल्स ऑफ ग्लूकोज को वेरिएबल कंसिडर कर सकते हैं? चलेगा, कर सकते हो, आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, बट टिपिकली मतलब मेरा ऐसा तरीका रहा है जहाँ पर जो गिवन कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उसके डिनोमिनेटर स्टार्ट करता हूँ तो कम टाइम लगता है। सर सर आपने इसमें 1 लीटर क्यों अज्यूम किया सर? डेंसिटी का हार्ड डेटा दे रखा है ना। तो नहीं नहीं, हाँ मतलब देखो एक्चुअली ये जो आर्ट है ना आइडेंटिफाई करना हार्ड डेटा किसका है किसका नहीं है, वो विद प्रैक्टिस ही आता है। तो लेट मी आस्क यू, ठीक है, जिसने क्वेश्चन भी कर लिया है, डू द सोल्यूशन बाय टेकिंग द वॉल्यूम एज वी लीटर। ठीक है, आप लोग वी लीटर मान के करो और शुरू हो जाओ एंड देखना एंड में वी कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर हो रहा है। हो जाता है। जिसने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं करा है पुट दैट एफर्ट इन एंड ट्राई विद टेकिंग द सोल्यूशन ऑफ द वॉल्यूम एज वी लीटर्स। हो रहा है सर। हो रहा था क्या? हाँ सर। राइट, हो रहा है। हाँ सर। यस सर हो जा रहा है। Yes, sir. यस सर, न्यूमरेटर में भी वी आ रहा है और डिनोमिनेटर में 1.02 वी आ रहा है। हाँ ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करने के पहले ये वाला समझ लो। चलो परसेंटेज बेस्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, थोड़े से और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऐड कर देते हैं, फिर क्वेश्चंस को और कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे। सो परसेंटेज बेस्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कैसे रहते हैं एक एक करके ऑब्जर्व करना। पहला है सिंपल परसेंटेज वेट बाय वेट। दिस इज प्रीटी ऑब्वियस, mass of solute upon mass of solution into 100%. That is called percentage weight by weight. This is also called as percentage strength by weight. Then there is percentage weight by volume. This is again simple, it is mass of solute. ठीक है, इसमें यूनिट्स का ध्यान देना। mass of solute should be in grams upon volume of solution in ml into 100%. ठीक है, ये दो टिपिकल आपके परसेंटेज वेट बाय वेट के टर्म्स, वेट बाय वॉल्यूम एंड वेट बाय वेट के परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूज करे जाते हैं। ठीक है, दिस परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज आल्सो कॉल्ड एज परसेंटेज स्ट्रेंथ बाय वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ पर वॉल्यूम रहता है। देन देयर इज अ थर्ड परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म आल्सो व्हिच इज लेस यूज्ड, that is percentage volume by volume. This is actually used when solute solvent solution all is liquid. तो उसमें क्या है, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम भी काम कर जाता है। ठीक है, जैसे आपने इथेनॉल और पानी को मिलाया, राइट, तो उसमें परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100%। ठीक है, तो ये परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म समझ में आए? यस सर। यस सर। और सर नीरज कुमार में पीपीएम करके भी एक था सर, उसका मतलब क्या होता है? आएंगे ना। पार्टिकल्स पर। पार्ट्स पर पार्ट्स पर मिलियन। Parts per million. पहले इतना तो करो, इसको लिखो फटाफट।
सर नीरज कुमार में एक टर्म था 760 टॉर लाइक TORR ऑफ मर्क्यूरी, सो व्हाट डज दैट मीन? वो mmHg होता है. ओके, सो सेम थिंग देन. Yeah. ओके. सर आप क्वेश्चन दिखा सकते हो. एक सेकंड सर. मैं पहले उसके आंसर्स रब करूंगा. एक मिनट ना, मैं जस्ट गिव मी 1 मोमेंट, आई रब द आंसर्स. ठीक है, ये परसेंटेज लिख लिया सबने? यस सर. Yes, sir. ठीक है, जिसने नहीं लिखा वो लिख लो. बाकी लोग ये क्वेश्चन पे वर्क करो. राइट, कैसे कैसे आप अप्रोच करोगे समझ में आ रहा है? आपका आंसर तो सही नहीं है प्रथम. ठीक है. नहीं, रोहन आपका भी गलत है. एंड ध्रुवल आपका भी गलत है. और सो वेट बाय वेट आफ्टर द सॉल्यूशन मतलब? नहीं, आफ्टर नहीं, वो ऑफ ऑफ या फॉर ही मान लो. अच्छा ओके. आर्यमन आपका भी गलत है. सुजल आपका भी गलत है. शुभियन 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 ये भी गड़बड़ी लग रहा है. हाँ, ये जोआन का ठीक है, पहला वाला. सर मैंने भी भेजा है फर्स्ट वाले का. कौन है मैंने? सर नचिकेत. नचिकेत. नचिकेत का हाँ Sky recent it, I wrote the wrong answer. ठीक है. ठीक सर है. इवन आई हैव सेंड द फर्स्ट वाले का आंसर.
निधि का गलत है, शुभियन का भी गलत है, कैरव का भी गलत है, सम्यक का भी गलत है, गोपाल का शायद सही हो सकता है क्या? सर शुड आई सेंड इट इन फ्रैक्शन फॉर्म की? हाँ मतलब मेरे पास कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो ठीक है सर ठीक है, फ्रैक्शन में भेजता हूँ कंफर्म। निश्चित का भी सही है, बाकी फ्रैक्शन में भेजा होगा। गलत। ठीक है, गोपाल तुम्हारा सही है, सर सेकंड वाले का भी भेजा अभी। काफी सारे बच्चे गलत हैं। सर सेकंड और थर्ड का भी भेजा। सर मैंने सारे भेज दिए। ठीक है, अब देखो कैसे होगा, मतलब वो एक्चुअली एक आना शुरू हो जाता है तो बाकी भी आने शुरू हो जाता है। तो अगेन यहाँ पे हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे? Let the volume be 1 liter. लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी 1 liters। ठीक है, ये तो मुझे लाइक गिवन कॉन्सेंट्रेशन टर्म के हिसाब से मैंने देख दिया। अब आस्क्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या है? सबसे पहली मोलालिटी, राइट? मोलालिटी is equal to moles of solute upon mass of solvent in kg। तो इसमें अब मैं जो मैंने लास्ट डिस्कशन किया था उसको यूज़ कर सकता हूँ, राइट? तो इसका न्यूमरेटर मैं अगर फिगर आउट करना चाहूँ, राइट, तो न्यूमरेटर कैसा हो जाएगा? इट विल बी आई यूज मोलारिटी, है ना? यस सर। Molarity is equal to moles of solute upon volume of solution, Yes, sir. लीटर्स में। ठीक है, यूनिट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ों का है, इसमें जितना हो सकता है पेन चलाओ, कंजूसी नहीं। ठीक है, ऐसे मोल्स ऑफ सल्यूट में बस मोल्स लिख के मत छोड़ो, अच्छे से लिखो किसके मोल्स। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बस वॉल्यूम लिख के मत छोड़ो, अच्छे से लिखो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, राइट? सो मोलारिटी आपको ट्यू दिया हुआ है और वॉल्यूम हमने 1 लीटर अज्यूम करा है, right? This is what is given and this is what we have Assume. assumed। तो यहाँ से आपका आ गया मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो हमारा एसिटिक एसिड है, ठीक है, CH3COH, दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब मुझे डिनोमिनेटर की तरफ वर्क करना है। डिनोमिनेटर क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। डिनोमिनेटर इज मास ऑफ सॉल्वेंट, 10 kg। और वो मास ऑफ सॉल्वेंट भी मुझे इन kg चाहिए, राइट? तो अब यहाँ पर I would look at what is it that I have been given. I have been given density of solution and volume of solution I have assumed, यस सर। right? So density of solution is 1.2 gram per ml and volume of solution is equal to 1 liter, or you can say 1000 ml. So this means that mass of solution I will get as 1200 grams, right? But this is not my denominator. My denominator is mass of solvent, which is what? Mass of solution minus mass of solute। नाउ जैसे मैंने लास्ट क्लास में किया था, लास्ट क्लास के बोल रहा हूँ, लास्ट एग्जाम्पल में किया था, मास ऑफ सोल्यूट कहाँ से आ जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट से। Molar. राइट, मोल्स ऑफ सोल्यूट से आ जाएगा। तो 60 है ना? ये यहाँ से आपको मॉलिक्यूलर वेट CH3COH का पता है ना, 60 है। 60। तो ये 1080 ग्राम्स आ गया, और यू कैन से 1.08 kg, है कि नहीं? Yes. यस सर। याद से रखना, kg है ये। सो नाउ यू कैन से, क्या हो गया ये? एक मिनट, मतलब कुछ तो गड़बड़ घोटाला नहीं हुआ। नहीं सर बराबर।
Now you can say molality will be equal to moles of CH3COH upon mass of H2O. ठीक है, ये जो सॉल्वेंट है ये एक्चुअली H2 है ना, एक्वस दिया हुआ है, यस सर। तो ये आ जाएगा 2/1.08. ठीक है, दिस इज योर मोलालिटी. अब आपसे काफी सारी चीजें लाइक होने लगेंगी. द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट? मोल फ्रैक्शन. Mole fraction. तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? Moles of the Moles of component upon sum of moles of all the components, right? तो ये तो 2 है. What about moles of H2O? ऊपर से निकल जाए। Like, can you get that from mass of H2O? Yes, sir. Yes. Sir. 0 upon 18, right? नहीं। है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो इससे आपका आ जाएगा 2 into 60 कुछ तो 2 times 18 plus 1080, है ना? यस सर। Yes, sir. Clear है? यस सर. सर। What about the third part? Third part is Wait, wait. percentage weight by weight. What was the definition of percentage weight by weight? Mass Mass of Mass of solute by mass of solution into 100. Mass by solution into into 100%. तो ये तो अभी हो ही गया ना. मास ऑफ सल्यूट हमने ऊपर से निकाला, 2 into 60 120 ग्राम्स था, है ना? लाइक CH3COH Yes, sir. पता है. सोल्यूशन हमने दिखा यहाँ पर 1200 ग्राम आ रहा था ना, सोल्यूशन ऊपर निकाला था. हाँ सर। sir. तो बस ये आपका आंसर हो गया. इसको आप So- सिंप्लीफाई कर लो. फोर्थ पार्ट में परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पूछा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ Mass सॉल्यूशन of solute Mass by of volume of solution. volume. राइट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. बट इसमें यूनिट sir. का ध्यान रखना है. इसमें यूनिट का ध्यान कैसे रखना है? यहाँ पर ये ग्राम, 10 grams. In gram. ठीक है, ये इन ग्राम्स रहेगा और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो Milliliter. मिलीलीटर में रखना है. सो नाउ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 2 into 60 अपॉन ये 1 लीटर लिया था ना 1000 ml into 100%. ये आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, समझ में आया? Sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. क्लियर है सबको? कहाँ कहाँ पे जिसने केयरलेस मिस्टेक करी है देखो फटाफट आइडेंटिफाई करो. दैट इज क्रूशियल. आइडेंटिफाइंग द केयरलेस मिस्टेक्स. कहाँ कहाँ पर क्या क्या गड़बड़ करा. और समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्यों करा तो पूछो भी सही कि सर मैंने ये करा. तो इसमें क्या सही था क्या गलत था. ठीक है, लिख लिया सबने? एक second. Yes, sir. चलो एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं. ठीक है, इनफैक्ट आई विल नीड टू रब द आंसर्स. जस्ट गिव मी 1 minute. आई विल फटाफट
rub the answers. हाँ, ये लो. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई कर लो. फिर थोड़ा जूम कर सकते हैं. हाँ हाँ, कर लेते हैं. लिख लिया ना ऊपर वाला? किसी को कोई डाउट तो नहीं है उसमें? कुछ पूछना है तो बताओ. Sir, what is written about specific gravity? Specific gravity is density of substance upon density of water. Since density of water is 1 gram per ml, so the specific gravity means just the density of the substance itself, or whatever solution that is here, जिसके लिए mention किया हुआ है. So इसको ऐसे read करना है that density of the solution is 1.1 gram per ml. Sir, मैंने किधर specific volume पढ़ा था? So what's that? Specific volume. हाँ sir, नीरज कुमार के क्वेश्चन में आया था. Volume of 1 gram of substance होगा या तो. सर आपको भेजू क्वेश्चन चैट में? मतलब 1 ग्राम ऑफ जो भी सब्सटेंस है उसका वॉल्यूम मान के करो ना, एक बार देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा. ओके सर. सर पहले वाले का भेजो. देखते हैं. रुको. ठीक है. सो क्या क्या आंसर आया आप लोगों के? पहला वाला मैं एक बार चेक करता हूँ. पहला वाला का ठीक ही लग रहा है गोपाल. तो सारे के आंसर्स भेज दिए अभी. और दूसरा भी ठीक ही है. सर मैंने भी भेजा है मेरा साइड का. हाँ मैं देख रहा हूँ. हरुषिल, तुम्हारा सही नहीं लग रहा मुझे. सर थर्ड और फोर्थ भी. कुशाग्र तुम्हारा भी सही नहीं है. सम्यक तुम्हारा भी सही नहीं है. आदित्य नॉट करेक्ट. रोहन नॉट करेक्ट. जोआन नॉट करेक्ट. जोआन तुमने कौन सा पार्ट का भेजा है? सेकंड पार्ट का भेजा है? नहीं सर, फर्स्ट पार्ट. नहीं, फर्स्ट पार्ट का तो गलत है. अजात शत्रु तुम्हारा करेक्ट है. तुमने सेकंड पार्ट का भेजा है तो
बाकी तो चलो सर बहुत मैंने बाय मिस्टेक सेकंड पार्ट का भेजा। हाँ नहीं ठीक है, बहुत सारे लोगों ने आंसर भेज दिए हैं तो मेरे लिए ट्रैक रखना डिफिकल्ट हो गया है। फर्स्ट वाले का जो आंसर है दैट इज इफ यू टेक इट इन डेसिमल प्लेसेस 0.5 0.55 ऐसा कुछ आ रहा है। 3.215 मोलर। ठीक है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 3. एक सेकेंड ना, हाँ 215 मोलर and molality is coming out to be 6.17 मोलर। अगर आपका ये आंसर आया है तो बहुत अच्छा है, नहीं आया है तो आप फिगर आउट करो कि आपने कहाँ पे गड़बड़ करी है। Put that effort in and try again. सर थर्ड और फोर्थ का। अब तुम्हारा आ गया ना पहले दोनों का, तो होगा थर्ड और फोर्थ का भी सही यार। बाकी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ देख के, मेरे पास लिखा हुआ नहीं है एक्चुअली थर्ड और फोर्थ का आंसर, वो शायद नीचे लिखा होगा इसमें। सर एक रिक्वेस्ट है, आप वो फ्लैगशिप बैच का क्वेश्चन पेपर भेज सकते हो क्या मूल कॉन्सेप्ट का? हाँ मैं भेजूंगा ना, बट मैं उसमें क्या ये कंसंट्रेशन टर्म्स के भी क्वेश्चन है, तो एक बार ये खत्म करा दूं फिर ठीक है उसके बाद भेजता हूँ, वो तो फिर आप लोग ट्राई करना। दैट शुड बी अ प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर फॉर यू बिफोर यू गिव द संडे का पेपर। सर आप सेट कर रहे हो ना संडे का? नहीं नहीं, ये संडे का नहीं सेट कर रहा हूँ मैं। अच्छा हुआ। अच्छा हुआ सर भाई। बट वो आएगा मेरे पास प्रूफ रीड करने के लिए, तो फिर मैं उसमें थोड़ा नहीं नहीं सर बहुत ज्यादा सर चेंजेस आप आराम करो सर, आप आराम से भाई सर, ये लेक्चर्स लेते हो सर आप आराम भाई करो। आपको सर आप चिल रहो सर। सर आप भी आराम करो, हमें भी आराम करना। करते हैं आराम ही करवाएंगे। थर्ड का आंसर 98.7 कुछ है। देख लेते हैं एक बार। सो जिसका आंसर मैच नहीं करा उसमें से कुछ लोग लेके आ पाए आंसर्स, रिकॉग्नाइजिंग कहाँ पर क्या गड़बड़ हुई है। ऑलराइट चलो देखते हैं इसमें कैसे करना था। तो यहाँ पर you started off by taking the denominator of the concentration term as 1. So what was the denominator? It was total moles, right? So total moles आपने 1 ले लिए। अब मोल फ्रैक्शन 0.1 दिया हुआ है, तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज 0.1 और मोल्स ऑफ वाटर 0.9 आ गए। Does that work? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now based on this, अब आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन चाहिए। व्हाट वाज मोलारिटी? मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यस सर।
राइट, मोल्स ऑफ सल्यूट. सो मोल्स ऑफ सल्यूट तो सॉर्ट हो गया, आई थिंक न्यूमरेटर तो सॉर्टेड है. What about the volume of solution? How are you now going to think about it? You do have the density of solution ka data, that is 1.1 gram per ml. What else would you need for volume of solution? Mass. Mass of solution. Do you think you are in a position to calculate the mass of solution based upon what you have done till now? No, sir. No, sir. मुझे तो ऐसा लगता है that you are. Yes, sir, मिल जाएगा. If you know the moles of Moles glucose, और do you know atomic the mass of molecular. glucose? If you know the moles of glucose, do you know the mass of glucose? Sir. Yes, Know sir. the moles of water, do you know the mass of water? If you add them up, do you get the mass of solution? Yes, sir. ठीक है, तो हो सकता है आपको नहीं स्ट्राइक करा होगा, बट अभी स्ट्राइक कर गया. ठीक है. सर आपको मोल्स ऑफ ग्लूकोज 0.1 कैसे आए एंड ऑफ वाटर 0.1? वो है ना मोल फ्रैक्शन 0.1. टोटल मोल्स मैंने 1 अज्यूम कर लिए और मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है ग्लूकोज का 0.1 है, तो 1 में से 0.1 अगर ग्लूकोज है तो 0.9 सॉल्वेंट हो जाएगा ना, वाटर हो जाएगा ना. यस सर, यस, समझ गया. ठीक है. तो फिर उसके बाद में अब आपका मास ऑफ सोल्यूशन आ गया. अब मास ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा तो आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी आ जाएगा, डेंसिटी के डेटा से आ जाएगा ना. उसको ml में निकाल के उसको लीटर में ले जाना, तो आपका ये मोलारिटी आ जाएगा. इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है. Sir, can't we find the volume separately and then add them? आप वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करोगे सेपरेटली? Sir, we got 0.1 mole of glucose and 0.9 mole of this water. So we'll calculate its mass, then density is mass by volume. So we'll calculate volume, then add both volumes. डेंसिटी तो जो है वो तो सोल्यूशन का दिया है ना. डेंसिटी ना तो वाटर का दिया है ना तो ग्लूकोज का दिया है. डेंसिटी जो दिया है वो तो सोल्यूशन का ही दिया है ना, तो आप उसी पे अप्लाई कर सकते हो ना. So what specific gravity is density of glucose upon density of water? नहीं 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 नहीं. Specific gravity is a general word that can be used for anything. तो यहाँ पर that anything is your solution. So density of your solution upon density of pure water, that is what is referred to as specific gravity. And since density of pure water is 1 gram per ml, तो यहाँ से आपका आ जाएगा that the density of the solution is 1.1 gram per ml. That is what specific gravity is just telling us. ठीक है. तो यहाँ से आपने यूज करा डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन एज 1.1 ग्राम पर ml. हाँ, आप ये बोल सकते हो कि सर मुझे तो डेंसिटी ऑफ वाटर भी पता है, तो ठीक है, आपको डेंसिटी ऑफ वाटर पता है तो लाइक मास ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ वाटर आप फिर भी अज्यूम कर सकते हो सर 1 ग्राम पर ml. बट फिर आपको मैं बोलूँगा डेंसिटी ऑफ ग्लूकोज क्या है, वो तो आपको नहीं पता ना. जो यहाँ पर डेंसिटी दिया है वो सोल्यूशन का दिया है. आप पूरा लैंग्वेज रीड करो. ठीक है, ये लैंग्वेज रीड करोगे तो कैसा दिखेगा? मोल फ्रैक्शन फॉर aqueous glucose solution is 0.1 and specific gravity is 1.1. Okay, sir. I had taken substance to be glucose. हाँ, नहीं, यहाँ पे पूरे सोल्यूशन के बारे में बोला जा रहा है.
पूरे सोल्यूशन के बारे में बोला जा रहा है, ग्लूकोज सोल्यूशन। ठीक है, क्लियर है? तो आप लोग अब बाकी के पार्ट्स ट्राई करो कि मैंने इतना हिंट दिया है। ठीक है, जिसका अभी भी नहीं आया है, आई वुड वांट यू टू पुट दैट एफर्ट इन एंड ट्राई फर्दर। ठीक है, इन द मीन टाइम आई विल आस्क अदर स्टूडेंट्स अनदर क्वेश्चन। ठीक है, बट आई वुड रियली वांट टू, मैंने मोलारिटी बता दिया, बाकी 3 पार्ट आप निकाल पाओगे? Yes, sir. तो ट्राई करो। देखो मैं एक बार यहाँ पर just give me one moment, I will put up that next question that I wanted to ask the students। ठीक है, जेई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये आप लोग ट्राई करो। जब तक बाकी लोग मुझे फर्स्ट पार्ट ये इस वाले क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स का आंसर निकाल के दे दो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो बाकी जनता। सो ये जेई का क्वेश्चन है क्या? सर थर्ड और फोर्थ का आंसर बता सकते हो एक बार? थर्ड और फोर्थ का आंसर ना, रुको लेट मी सी। थर्ड का आंसर आएगा थोड़ा गंदा सा ही है, क्या है ये, 1800 बटा 34.2, 52.6। ओके सर। Neeraj Kumar, and even in the PACE का previous TWT में there was this question कि for what should be the density of a urea solution such that the molarity and the molality is the same. Sir, और उसका correct option था 1.06 sir, but that is taken assuming that the molality and molarity is equal to 1. तो मतलब is the question incomplete कि ऐसे कुछ और करना है? देखना पड़ेगा सर मैं आपको भेजूं क्या वो? हाँ भेजना। ठीक है सर। इन द मीन टाइम ये वाला ट्राई कर लो, इसके ये आंसर्स लेके आना, मतलब ऊपर वाले के मैंने आंसर्स लेके आए, बाकी लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। सर सेकंड वन का ऑप्शन आंसर क्या है? हाँ क्या कह रहे हो? सेकंड वाले का आंसर क्या है? ये वाले क्वेश्चन का नो सर, पहला वाला क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। 6 पॉइंट समथिंग, 6.17 आई थिंक। हाँ सर। सर सोल्यूशन एक्वेस सोल्यूशन है क्या जो नहीं आपने? आवा तो नहीं है।
Sir, is the answer 9:1? So 1:9. वैसे ही सर कुछ तो. So I got 1:9. सर आंसर क्या है? हाँ हाँ 9 and 9. 9:1. हाँ सर. 9:1. ये पहला वाला तो हो गया ना सबसे. इसमें आप किसी को कोई डाउट है, हाँ कुछ सर. पूछना है? नो सर. नो सर. ठीक है, मान के चलते हैं आप लोगों का हो गया है. ओके ठीक है, आंसर्स तो हैं ही सही यहाँ पर. ये सब मोलालिटी वाले का 6.17 है, ये परसेंटेज वेट बाय वेट का, ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का है. ठीक है, हाँ ये वाले क्वेश्चन का अब आप लोग सॉल्व कर रहे हो, तो इसमें बताते जाओ कहाँ पे क्या आ रहा है आंसर. Yes, I got 9 only. I took solvent upon solute by mistake. हाँ हाँ ठीक है, हो जाता है. ऑलराइट, 9 आ रहा है आंसर. Yes, अब sir. जिसका नहीं आ रहा है वो लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे. ठीक है, इसमें what has been given, what has been asked, इसको अच्छे से नीटली लिख लेते हैं. मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट दे दिया है 0.1. मोलारिटी और मोलालिटी को बराबर बताया जा रहा है, एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है 2 ग्राम पर ml. And you have been asked to compute molecular weight of solute upon molecular weight of solvent. ठीक है, don't assume water as a solvent because there is no such information that is given in the question. अब मुझे like given से asked की तरफ जाना है, but I can't seem to find a direct connection. ठीक है, but at least I can start analyzing what is given to me. Right, there is this critical piece of information that is given to me. Moles of solute is equal to 0.1. ठीक है, again यहाँ पर since there is no hard data of moles, I can start by saying let the total moles be 1. इससे मुझे moles of solute और moles of solvent पता पड़ जाएंगे. ठीक है, यहाँ तक का ठीक है.
अब इसके अलावा क्या दिया है क्वेश्चन में? इसके अलावा दिया हुआ है दैट मोलारिटी इज इक्वल टू मोलालिटी, तो उसको यूज कर लेते हैं, उसको एनालाइज कर लेते हैं. मोलारिटी इज मोल्स अपॉन सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर एंड मोलालिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. So it means that I got an understanding that moles of solute cancel out हो जाएगा. That means volume of solution in liter is equal to mass of solvent in kg, right? अब इसके आगे मैं कैसे जाऊँ? इसके आगे is there something else that I can use in the question that I have not used yet? Density. Density. Of solution is given as 2 gram per ml. ठीक है, तो maybe that should come in handy. 2 gram per ml is also 2 kg per liter only. That is a unit conversion that comes in of use है. अब नोटिस करना, जो मास ऑफ सोल्यूशन है वो तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन होता है. तो यहाँ से आपको ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन से, दैट इट इज मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेंसिटी दैट इज गिवन ओवर हियर, दैट्स 2. तो इसको एज इट इज पुट कर लिया यहाँ पर. And you know that mass of solution is equal to mass of solute plus mass of solvent. That is written as 2 times mass of solvent. So you come up with the understanding that mass of solute is equal to mass of solvent, right? And ये क्या हो रहा है यहाँ पे? Like when I am writing all these steps down, आप notice करोगे कि ऐसे तो सर आपने कभी कोई question solve नहीं करा, ये तो कुछ नया ही हो गया. हाँ तो बिल्कुल नया है ना, जेई का क्वेश्चन है, कोई हल्का क्वेश्चन थोड़ी ना है. ऐसा थोड़ा ना है कि कुछ रटा रटाया सोल्यूशन कहीं से मिल जाएगा और आप चिपका दोगे. अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्किल सेट दैट इज गोइंग हियर. द स्किल सेट इज टू कीप ऑन एक्सप्लोरिंग, टू कीप ऑन कनेक्टिंग द डॉट्स. ठीक है, एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू प्रोसीड इन ओनली दिस वे. यू कुड हैव प्रोसीडेड इन सम अदर वे, बट वन थिंग फॉर श्योर इज दैट ऐसा क्वेश्चन जब ये 2016 में आया था तब बच्चों ने देखा नहीं था कि ऐसा क्वेश्चन उन्होंने करा हो कहीं पे पहले. They did solve questions of molarity, molality, interconversion between concentration term, but not exactly this question. So what did JEE Advanced do? They asked question which was based on the same underlying concepts that they have studied, but required a bent of mind that asked them to just keep on writing things and do the analysis and maybe eventually come up with what is being asked. तो जब मैं ये question भी कर रहा होता हूँ ना, ठीक है, like if I'm solving it for the first time and I'm doing step after step, I really don't know where these steps are going to land up. I just keep going back and forth between what is given, what is asked. Is there something I can still write? Is there something I can still connect? Maybe I am going in some redundant direction, but that's okay. At least I keep on writing. हो सकता है at some point in time it strikes me कि अच्छा हाँ like solute solvent को like correlate करना है, ये mass of solution और volume of solution आया, and then it strikes me अच्छा mass of solution को तो mass of solute plus mass of solvent लिख देंगे और solute solvent के बीच का relationship लिखने में आ जाएगा. ठीक है, तो ये कई बार ना एक सेरेंडिपिटी का मोमेंट आता है कि अरे मतलब अचानक से कुछ स्ट्राइक कर गया. आपको वो चीज रट्टा मारने से नहीं आएगी. द मोर यू राइट, द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू विल बी एबल टू गेट सच थिंग्स. सो यहाँ से अब हम लोग देखेंगे मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर है और फिर मोल्स ऑफ सोल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिख दूंगा मैं मास को, राइट. एंड यू रिमेंबर दैट अच्छा हाँ स्टार्टिंग में तो मोल्स के बारे में भी कुछ दिया था, वो मोल फ्रैक्शन वाला, उससे हमको यहाँ पर ये भी कनेक्ट हो जाएगा और उससे मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो आ जाएगा. सो दिस इज द फ्लो इन विच दैट दिस क्वेश्चन वेंट अबाउट. ठीक है, इट वाज नॉट अ नॉर्मल क्वेश्चन, समथिंग नॉट ऑब्वियसली रिलेटेड व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज आस्क्ड. लाइक दिस इज नॉट इवन रिमोटली similar to some of the questions that were done earlier. It is quite different, and that's what made it difficult. That's what made it challenging. And many students are able to do it. ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं कर पाया. मतलब I'm sure that out of lakhs of students that gave the examination, a few thousands were able to do this question. Those who got the ranks, because of the sheer effort that वो बस चलते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं. ऐसा ये aptitude आप मैथ्स में डेवलप करते हो. इनफैक्ट आपने इतना मैथ्स अभी प्रैक्टिस कर लिया है सो एज टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग मैथ्स LHS इक्वल टू RHS करना होता है तो आपको नहीं पता होता स्टेप 1 के बाद में ये करेंगे तो ये आ जाएगा.
आप करना शुरू करते हो एंड देन बीच बीच में चीजें स्ट्राइक होती है और आपको अगला स्टेप दिखता है एंड देन अचानक से यू फील कि हाँ हाँ आप कनेक्ट हो रहा है. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन दिस क्वेश्चन. समझ में आया? यस सर. ठीक है, तो एफर्ट डालना है, जम के एफर्ट डालना है. इतना बेसिक्स जितना हम कर रहे हैं ऊपर ऊपर से, ठीक है, वो सब जेई मेंस के लिए काफ़ी रहेगा. जेई मेंस में ना ऐसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक है, सिंपल सिंपल की फॉर्मूला दे दिया, अप्लाई करो, आंसर आने लग जाएंगे. एडवांस में लाइक दे टेंड टू डिफरेंशिएट. ठीक है, नॉट ऑन ऑल द क्वेश्चंस बट यस द क्वेश्चंस व्हिच एक्चुअली डिसाइड द रैंक वो ऐसे ही रहते हैं. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करो, ये भी जेई एडवांस का ही क्वेश्चन है. दिस इज relatively easier, it is not that bad. मतलब पिछला वाला was थोड़ा challenging. This should be something that you are able to do. ठीक है, one hint that I would want to give you is there is hard data in the question, so don't just assume certain values. Sir, in the previous question, बोलो बोलो एक एक करके. So is the answer 2.857 कुछ? I don't know exactly. इसका आंसर तो मुझे याद ही नहीं है. अच्छा ठीक. तुम ऐसा करो ना, इसके कुछ कुछ वर्ड्स गूगल पे टाइप करके देख लो, तुम्हें मिल जाएगा. सर मिल जाएंगे सर. ऐसे डाउट नॉट करके ऐप है, तो सर पूरे हमारे बुकलेट के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस है उस पे. हाँ सर, बहुत हेल्प करता है कभी कभी. उसमें तो मतलब सारे कोचिंग क्लास के सारे बुकलेट के सॉल्यूशंस हैं. हाँ सर, मतलब मैथ्स के भी मॉड्यूल से, फिजिक्स के भी मॉड्यूल से, इधर उधर मतलब थोड़ा फर्क हो सकता है लेकिन मेजॉरिटी सॉल्यूशंस है उसमें. मिल जाता है, बट द लाइक इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड. मतलब इट काइंड ऑफ मेक्स यू कॉम्प्लेसेंट सर, कि अगर मतलब क्वेश्चन नहीं आया तो फिर है वो. फटाफट सोल्यूशन देख लेते हैं वो हाँ ऐसे. sir, मतलब बहुत रेयरली यूज करता हूँ लेकिन यूजफुल है सर. हाँ, मतलब ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स इट इज हेल्पफुल जो ऑलरेडी लाइक किस चीज़ में है कि मतलब इजी क्वेश्चंस पे फाइट मारते हैं, डबल अटेम्प्ट करते हैं और फिर नहीं आता है तो देखते हैं. दोज हु आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स, उनके लिए तो इट्स अ लाइक क्या बोलते हैं वो, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? और 2.8 is the answer. सर वैसे ही कुछ तो है, 2.9 वैसे कुछ तो. हाँ सर, 2.9 जितना, 2.98 ऐसा कुछ तो आ रहा है. सर आंसर 2.98 है क्या? आई थिंक वही है, आसपास ही है, देखना पड़ेगा. सर लास्ट वाले क्वेश्चन से ज्यादा अच्छा. बहुत अच्छा था सर ये.
So is the answer 2.07? So 2.98 है ना? हाँ तो आंसर आ रहा है, आप देखोगे नीचे जाके 2.98, यस। ठीक है, यहाँ पर डोंट स्टार्ट बाय अज्यूमिंग 1 लीटर बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 लीटर कॉम्प्रोमाइजेज विद द फैक्ट दैट हार्ड डेटा ऑफ मास इज गिवन टू यू। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है उसको अच्छे से लिख लिया। मास दिया है 900 ग्राम, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ वाटर दिया है, लाइक वाटर इज अ सॉल्वेंट ओवर है ना, मास ऑफ सोल्यूशन नहीं दिया है, ढंग से नोटिस करना। मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया है एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया दिया है। ठीक है, मोलारिटी ऑफ यूरिया दिया है, राइट, पूछा है इनफैक्ट। तो यहाँ पर भी आई विल ऑल्सो नॉट स्टार्ट विद 1 मोल कि टोटल 1 मोल है। क्यों? क्योंकि इसमें हार्ड डेटा दे दिया ना 900 ग्राम पानी का, तो ऐसा कंपल्शन नहीं है ना कि 1 मोल टोटल लेने से लाइक 900 ग्राम पानी आएगा। बट ठीक है, जो डेटा दिया हुआ है वो काफ़ी अच्छा है, उससे आप वर्क करोगे। आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया दिया हुआ है और मास ऑफ वाटर दिया है, तो मास ऑफ वाटर से मोल्स ऑफ वाटर मिल जाएंगे, तो उससे आपको मोल्स ऑफ यूरिया मिल जाएगा। करेक्ट। अब आपको मोल्स ऑफ यूरिया पता है और मास ऑफ यूरिया पता है इससे, और मास ऑफ वाटर पता है, तो मास ऑफ सोल्यूशन पता है, मास ऑफ सोल्यूशन पता है, तो उससे आप डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन यूज़ करके वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा, मोल्स और वॉल्यूम आ गया, यू सब्स्टिट्यूटेड टू गेट द मोलारिटी। ठीक है, यस सर। Yes, sir. देखो जिन जिन के आंसर्स नहीं आ रहे हैं ना आज के क्वेश्चन में, लाइक दोज हु आर स्ट्रगलिंग, इट इज़ एब्सोल्युटली ओके। यू नीड टू टेक अ डीप ब्रेथ, सिट बैक, टेक आउट टाइम टुडे, ठंडे दिमाग से रीसॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, टेक एन अटेम्प्ट फ्रॉम योर साइड। नहीं समझ में आएगा तो सोल्यूशन देखना, सोल्यूशन देखने के बाद में बस सोल्यूशन रीड करके मत रह जाना, समझना क्या अप्रोच है, फिर से वापस ट्राई करना। ठीक है, मे बी नॉट टुडे बट टुमारो, बिकॉज फ्रेश सोल्यूशन देख के तो फटाफट कॉपी हो ही जाता है ना, मे बी टुमारो, बट मेक श्योर दैट यू आर एबल टू गेट द क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स बाय योरसेल्फ। ठीक है सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, ये क्वेश्चन का पूरा लास्ट पार्ट कैलकुलेटर बेस्ड था ना सर? नहीं, इसमें इनफैक्ट मतलब ऐसा है कि अगर आप ना यहाँ पर फ्रैक्शंस कैलकुलेट करना शुरू कर दोगे ना, डेसिमल्स, तो फिर आपकी लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। बट अगर आप यहाँ पे भी फ्रैक्शन में ही रखोगे एंड वॉल्यूम को भी फ्रैक्शन में ही रखोगे, और फिर जब यहाँ सब्स्टिट्यूशन करोगे तो काफ़ी सारा कैंसिलेशन होगा और रिलेटिवली लाइक क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आखिरी में आसान बन जाएगी। So one learning would be not to do decimal calculations in the start. Keep things in fraction, keep them till the end in fractions. हो सकता है cancellations होने लग जाए। ओके सर। ठीक है, all right, good enough. So मैंने एक छोटा डाउट भेजा सर, कैन यू सॉल्व इट? छोटा ही है कि बड़ा है? नहीं सर, मतलब एक ही, मतलब सर 1 सेकंड लगेगा। Vapor density of a volatile substance is 1.2. तो उसमें जो ब्रैकेट में रेफरेंस दिया है वो बोला जा रहा है कि C2H6 का 1 है। मतलब हाँ सर, वही समझ नहीं आया, मतलब व्हाट डज इक्वल टू 1 मीन? C2H6 का रेफरेंस लिया है ना, जैसे याद हो तो मैंने आपको बताया था वेपर डेंसिटी इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रेफरेंस गैस। तो इसमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रेफरेंस गैस जो है वो C2H6 ले लिया है। हाँ सर, ओके, सो इट बेसिकली मींस दैट ओनली, राइट? ठीक है, यस सर। आज के लिए यहीं तक रखते हैं डिस्कशन। सर के आगे थोड़ा सा और बाय सर, थैंक यू सर। PMPPP वाला वो मैं अगली क्लास में करा देता हूँ। सर पेस केवीबीवाई के लिए कोचिंग करता है क्या? हाँ करता है ना। अच्छा ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। किसी को कोई डाउट पूछना है? यस सर नचिकेत। हाँ बोलो नचिकेत।
सर इन द प्रीवियस क्वेश्चन जो आपने जे एडवांस 2014 का था, हाँ उसमें तो ये बस जो टेम्परेचर था 298 के, ये बस ऐसा कंफ्यूजन के लिए ही था ना, मतलब इसका कुछ रिलेटिवली इतना यूज नहीं था ना क्वेश्चन में। इसका कोई यूज नहीं था, इट वाज एन एक्स्ट्रा डेटा पॉइंट। सर बिकॉज 0 डिग्री हो रहा है इसके लिए कि नहीं नहीं उसका कुछ काम ही नहीं है। बेसिकली इट इज ट्राइंग टू से कि जो एवरी मेजरमेंट दैट इज बीइंग हैपनिंग is at the same temperature so that that temperature sensitivity is not compromised. बट सर मोलारिटी में वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंड करता है ना। हाँ तो इसीलिए उसमें टेम्परेचर देके बस इतना बोल दिया कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, मेंटेन्ड है, मतलब कुछ चेंज वेंज नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं कि मोलारिटी चेंज हो रही है। ओके ओके सर। और सर नीचे वाले क्वेश्चन में जो ब्रैकेट में दिया था गिवन डेटा मोलर मासेस, तो सर उससे भी मोल्स तो मिलेगा ना, क्योंकि 60 ग्राम मोल दिए तो 60 मोल्स हो गया यूरिया का। तुम क्या खा के आए हो? किसी का मॉलिक्यूलर वेट दे देंगे तो उसके मोल्स मिल जाएंगे। सर बट आपने तो मतलब बोला था ना कि ग्राम मोल्स को हम एज 1 मोल पढ़ते हैं। क्या क्या ये बोला? ग्राम डैश एटम। अरे राजा ये तो यूनिट दी हुई है ना मॉलिक्यूलर वेट की, या तो एएमयू देते हैं या ग्राम पर मोल देते हैं। सॉरी सर, मैं वो ग्राम एटम और इसमें कंफ्यूज हो गया, ग्राम आयन और ग्राम एटम में। नहीं नहीं नहीं, बहुत ही नया वाला तुमने आज सर दिव्यांश कांड कर दिया। हाँ बोलो दिव्यांश। सर अगर टेम्परेचर अलग हो गया तो फिर मोलैरिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे फिर? वो तो फिर टेम्परेचर का आपको डेटा मिलेगा, सेंसिटिविटी का, कि कैसा वॉल्यूम चेंज हो रहा है। वो कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन आपको फिजिक्स में पढ़ाएंगे, वॉल्यूम का कैसे चेंज हो रहा है वॉल्यूम, फिर उसको आप नया वॉल्यूम यूज करके नया मोलारिटी निकाल देना। ओके सर। आप एग्जांपल दे सकते हैं? नहीं दे सकते। बोलो आदित्य। Sir, I was having a doubt, sir. So, in some situations, we have assumed volume taking 1 liter, and in some situation, we are taking 1 mole. So, means when will we take the cases, sir? Like in which cases? वो तो मैंने अप्रोच आपको बताया ना, दैट वाज समथिंग आई थिंक स्टार्टिंग में यू मिस that I had asked you to start with the denominator of the given concentration term. तो यहाँ पर like molality दिया था, तो उसका denominator was mass of solvent, so I was like take mass of solvent as 1 kg. इस question में the given concentration term was molarity, तो उसका denominator was volume of solution, so I was like take volume of solution as 1 liter. Right? इस वाले question में molarity दिया था, तो उसका denominator volume of solution as 1 liter ले लिया। Yes. इस वाले में मोल फ्रैक्शन दिया हुआ था, राइट? सो उसका डिनोमिनेटर क्या होता है? टोटल मोल्स, तो दैट वाज टेकन एज 1. So typically in all these questions you could have got the answer by saying volume of solution is 1 liter. आप सिर्फ वो भी लेते, सब में आपका आंसर आएगा, ठीक है? The reason why I did this, that start with the denominator of the given concentration term, it makes the calculation slightly bit easy. If you want to still test it out, आप हर question में in the given ones, ठीक है, जो starting में थे जिनमें hard data नहीं है, you start by taking volume of solution as 1 liter, you still should be able to solve and get the answer. Although the solving might become challenging for you, ठीक है, but किसी नहीं होगा तो मुझसे तो हो ही जाएगा, but I can do that for you, but I don't want to do that for you, so that's why I did that, कि इससे करोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। Okay, sir. Sir, and in one of the question where we had taken that mole fraction, that mole fraction was given, no? So in that one means the total moles you had written one means we have to write it like if they given mole fraction of the glucose solution means we write it as moles of glucose upon moles of glucose plus moles of water, no? Yeah, यही तो लिखा है ना। Yes, sir. So this N total is of I'm getting confused that this total moles is of only the glucose and water or particularly just glucose? नहीं ना, total would be solute plus solvent ना, solute is glucose, solvent is water, so total is solute plus solvent. Okay. So that only we have assumed as 1, no sir, mean the denominator 1. Yes. Understood. Yeah sir. सर मुझे एक डाउट, बोलो। हम लोग ने एक केस में लिया था और सॉल्वेंट
हम लोग ने वाटर अज्यूम किया था, और लास्ट में आपने जो जेई एडवांस का क्वेश्चन दिया था उसमें आपने बोला था कि वाटर अज्यूम नहीं करना। नहीं, जब सर एक्वस लिखा है तभी अज्यूम करना है ना, एक्वस वर्ड रीड करो ना। हाँ हाँ, ओके ओके सर। एक्वस है तो वाटर सॉल्वेंट है, यहाँ ऊपर भी मैंने ये एक्वस कर दिया था, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है एक्वस, तो ठीक है वाटर नहीं मानो चलेगा। यहाँ पर भी नहीं लिखा है, नहीं यहाँ लिखा है एक्वस, तो वाटर सॉल्वेंट मानो। हाँ हाँ, ओके सर, समझा था। ठीक है, थैंक यू सर। यहाँ पर जैसे एक्वस लिखा हुआ है तो वाटर सॉल्वेंट है। ओके सर, समझा, थैंक यू सर। ठीक है, So for the self-assessment form that you have sent, is there any particular deadline by which you have to submit it today? मतलब या चैप्टर खत्म हो चुका है, उसको आप मतलब ऐसे लाइक उस पर प्रोक्रेस्टिनेशन करके करोगे क्या? And it is something which you can update later as well. Like I will keep an option once you fill that form, I am going to analyze and then I'm going to again send that form to you for updation. You know, if you have not done some things completely, तो आप फिर update करो उसको। Okay, sir. Thank you. ठीक है, चलो, all right, thank you guys, take care, bye bye. Bye, sir. Thank you.